Okay children, now we are going to our grammar next chapter. The chapter is the uses of noun. First of all, what is noun? The name of person, place, things and animals. It's called the noun. There are the different nouns. Nouns के दो पार्ट singular and plural. The plural nouns है उसके अलग अलग नियम है. यहाँ पे है most nouns forms their plural by ending s. यहाँ पे बहुत सारे nouns है जिसका plural करने के लिए it's convert to end with s. जैसे कि I का eyes, tree का trees, rose का roses, house का houses. उसी तरह the nouns ending in a s, double s, x, sh or ch from their plural by ending es. तो ऐसे nouns है जिसके end में s, double s, ch, x या o हो तो उसका plural form करना है तो add with es. जैसे कि s उसके पीछे जो end है double s है तो उसका plural form करने के लिए a double s es. उसी तरह dish the noun ending with sh तो उसका plural करने के लिए dish es करना है. उसी तरह another is bench bench तो उसका end में है ch तो convert the plural bench es. Okay, another rules for the nouns are that if a noun end in a consonant plus y the plural is formed by changing y into is. Suppose the noun is that an ending with y and before consonant is used तो convert the nouns to plural is जो y है उसकी जगह पे हम i लगा के es कर देंगे. जैसे कि lady lady का end में है y और उसके before है consonant t so उसका plural form करने के लिए हम क्या करेंगे y की जगह y का हटा के ies करेंगे. उसके बाद another है baby तो उसका कहेंगे bies. उसी तरह ही country country the ending with y and before the consonant so these pronouns convert to plural is coutris. Okay, then another rules are that if a noun end in a vowel plus y तो the plural is formed by ending s. Okay, तो ऐसा कोई nouns है जिसका end y है बस उसके before मतलब कि vowel plus y होगा y और before में vowel होगा. Which vowels are there? a, e, i, o, u. इनमें से कोई भी vowel होगा तो you can convert the nouns to ending by s. जैसे कि toy toy तो उसका होगा toys. उसी तरह monkey 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 तो convert the plural is monkeys. Okay, then another rules of the plural form is nouns ending in a f or fe form their plurals by changing f or fe into ves. जैसे कि कोई nouns है उसका end में f या fe से complete होता है noun तो convert the nouns is अकेला f होगा वो निकल के convert into ves या fe होगा the whole f is remove and add with ves. जैसे कि leaf है उसके पीछे के दो नाउन है वर्ड है fe तो उसका fe रिमूव हो गए lives. उसी तरह सपोज अकेला f वाला एग्जांपल ले लेते हैं lef leaf उसका प्लूरल कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे रिमूव द f and add ves to make the plural तो lef leaf तो उसका होगा leaves. But the following nouns ending in f take only s. Some nouns ऐसे हैं कि जिसका end तो f से ही होता है but some nouns are indicate only the plural form only at the end. जैसे कि वो ऐसे हैं hoof, chief, proof and roof. They all are convert the plural to ending by s. Okay, then another rules are that nouns ending in a consonant plus o generally form their plurals by ending es. ऐसे nouns the end with o and then also consonant होना चाहिए before o the consonant is here so these nouns are convert to end with es. जैसे कि potato to the end with o and before the
the plural form is that MOSQITOES. Okay, then another rules are that the following nouns from their plural by changing the inside vowel. यहाँ पे बहुत सारे जो nouns है उसमें ना कोई एडिंग है, एंड में कोई ऐड नहीं होता, पर जो बिटवीन में उसके अंदर जो है वोवेल उसको ही चेंज करके हम आगे करेंगे. जैसे कि फूड, FOOD फूड, और उसका प्लूरल फॉर्म है फीड. ये आपको रिमाइंड करना है. इट्स नॉट एनी पर्टिकुलर रूल्स. जैसे कि गोस तो मींस गीज, टूथ टीथ, माउस माउस, वुमेन तो वुमेन, मैन मैन. Okay, then another rules are that the following nouns take en in their plural form. तो यहाँ पे भी आपको ये माइंड में रिमाइंड करके लिखना है. नॉट एनी पर्टिकुलर यहाँ पे है तो OX, तो OX का होगा पर्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन. उसी तरह नॉट द प्लूरल फॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड नाउन्स. ऐसे जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं तो कन्वर्ट इनटू प्लूरल फॉर्म, ये भी आपको प्रॉपर्ली याद रखना है. नॉट अ पर्टिकुलर रूल्स आर दैट. जैसे कि पासर बाय तो पासर्स बाय, सन इन लॉ तो सन्स इन लॉ, वॉशरमैन तो वॉशरमैन में जो एम है ना उसका ये सब वही का वही रहेगा बट एम हो जाएगा. फादर इन लॉ मदर इन लॉ उनका हो जाएगा फादर्स इन लॉ मदर्स इन लॉ. ओके, देन some nouns have the same form in the singular and the plural. कई nouns ऐसे भी हैं कि जिसका plural and singular they both are the same. जैसे कि sheep, deer, fish, trot, pair, dozen, score, 100, 1000, etc. तो when used after the plurals, suppose कि देखो that sheep is mine and those sheep are mine. यहाँ पे it's not a matter sheep and sheep. अगर singular form है तो भी we can use the sheep and plural form में भी we can use also sheep. So now the another rules are that the following nouns are always singular and take a singular verb. कई nouns ऐसे ही हैं कि वो singular में always आते हैं और verb में भी हम उसको singular के form में ही जैसे use करते हैं. Suppose आपने सुना होगा we can say news. कोई new बोलता नहीं, एक news हो या एक से ज्यादा हो, we can use the word news. Okay, then the following nouns always take a plural verb. कई नाउन ऐसे भी हैं जो हम सिंगुलर में भी यूज करो या प्लूरल में. द प्लूरल वर्ब्स आर यूज्ड. जैसे कि ट्राउजर्स, पीपल, थैंक्स, रिचेस, क्लोथ्स. अगर हम एक क्लोथ का भी यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे तो भी क्लोथ्स वर्ड्स, एक से ज्यादा होगा तो भी we can use the clothes. जैसे कि his trousers are torn, her clothes are dirty. यहाँ पे clothes are dirty बोला है मतलब कि अगर एक क्लॉथ की बात की है तो भी क्लॉथ्स, एक से ज्यादा तो भी क्लॉथ्स. These scissors are blunt and many people have been hurt. Letters and figures are made plural by adding. कहीं letters हो और figures हो उसको भी plural में s add करना है. जैसे कि add 2s, 5 and 4 2s. Count all the i's and o's on this page. Okay, now we are explained our exercise. One is rewrite each sentence using the plural of underlined words. यहाँ पे जो आपको underline किए गए words हैं उसको आपको plural form में convert करना है. तो the first sentence is that a teacher is a man or woman. यहाँ पे आपको underline दी गई है teacher, man and woman. तो उस sentence को convert करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे? तो teachers इसकी जगह पे क्या होगा? टीचर आर और मैन का हो जाएगा MEN मैन और वुमेन का WOMEN. तो दिस सेंटेंस इज कन्वर्टेड इनटू अ प्लूरल फॉर्म. Our another exercise is that rewrite each sentence using a singular form of underlined word. यहाँ पे मैं आपको एक सेंटेंस डिस्क्राइब करके बताती हूँ. वो जो सेंटेंस है उसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स है आपको प्लूरल फॉर्म में करना है. जैसे कि schools are large buildings. तो
यहाँ पे आपको एक बार मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि अगर इफ द सेंटेंस इज सिंगुलर टू कन्वर्ट इनटू प्लूरल द आर्टिकल विल बी रिमूव्ड एंड द सेंटेंस इज अ प्लूरल फॉर्म टू कन्वर्ट इनटू सिंगुलर वी ऐड द आर्टिकल। जैसे कि यहाँ पे स्कूल्स आर लार्ज बिल्डिंग्स, तो कन्वर्ट करने के लिए स्कूल्स का स्कूल हो जाएगा, तो आगे आएगा अ स्कूल is a large buildings का हो जाएगा बिल्डिंग। ओके, now I explain our third exercise. The third exercise, the question is correct the following sentence. यहाँ पे आपको sentences दिए गए हैं, आपको उसका correct form में ट्रांसफर करना है। जैसे कि the first sentence is Lucy has golden hairs. यहाँ पे ये जो सेंटेंस है उसको आपको करेक्ट फॉर्म में देना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि लूसी हैज द गोल्डन हेयर्स। यहाँ पे जो लूसी है वो तो सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे करेक्शन ये है कि हेयर्स, जो हेयर्स है यहाँ पे हेयर आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस इज दैट लूसी हैज golden hair. Okay, then another sentence I explain you. He gave me 10,000 rupees. ओके, इसको करेक्शन में क्या है, ये सेंटेंस ही गिव मी 10,000 रुपीज, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज की जगह रुपी आएगा। Okay, then the another exercise sentence are given by a PDF. Now our another topic is nouns, kinds of that. There are the different kinds of gender: masculine, feminine, and common gender and neutral gender. First, a noun used for a male is of the masculine gender. जो मेल एनिमल या मेल पीपल के बारे में डिस्क्राइब किया गया हो, तो उस प्रकार के जेंडर को मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं, जैसे कि मैन, बॉय, अंकल, सन, ब्रदर, किंग, लायन, etc. The another kinds of gender is a noun used for female is of the feminine gender. जो फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल्स के बारे में डिस्क्रिप्शन किया हुआ हो, तो उस प्रकार के काइंड्स ऑफ जेंडर को हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं, जैसे कि वुमन, गर्ल, आंट, डॉटर, सिस्टर, क्वीन, लाइक दिस. Another kind of gender is a noun used for both male and female. Each of the gender is called the common gender. जैसे कि कई नाउन्स ऐसे हैं कि उसमें हम दोनों के दोनों मेल और फीमेल दोनों जेंडर यूज कर सकते हैं, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, प्यूपिल, फ्रेंड. तो उस प्रकार के जो जेंडर्स है उसे बोलते हैं कॉमन जेंडर. A noun that is neither male nor female is a neutral gender. neither मतलब कि इस नाउन में ये कहा गया ना ही वो मेल पोर्शन में है ना ही वो फीमेल पोर्शन में, बट इट हियर ना वो फीमेल ना वो मेल, तो वो है न्यूट्रल जेंडर. जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स है, हाउस, नाइफ, ट्री, चेयर, एटसेट्रा. Here the feminine of nouns, जैसे कि by adding es, 3 वे है feminine nouns के. उसमें पहला है ESS, lion है, उसका feminine nouns करना हो तो lioness, poet का poetess, author का authoress. उसी तरह sometimes the form is slightly changed before ESS is added. जैसे कि ये टाइगर है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है feminine में, तो tigress, नेग्रो का नेग्रेस, हंटर का हंड्रेड्स. उसी तरह by changing a part of the compound word, जैसे कि यहाँ पे है
जैसे कि हमने कन्वर्ट किया था वो मस्कुलाइन में से फेमिनिन में करने के लिए ई डबल एस, बट यहाँ पे याद रखना है पीकॉक का पी है, ही गॉट का शी गॉट, लैंडलॉर्ड का लैंडलेडी, मिल्कमैन का मिल्कमैन, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर एंड मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट। उसी तरह many nouns have a different word for the masculine and the feminine। यहाँ पे बहुत सारे हैं जिसके masculine और feminine दिए हुए हैं, जैसे कि fox का vixen, sir का madam, drag का dog, horse का maid। ये सभी आपको रिमाइंड करना है और प्रॉपरली लर्न करना है to use the exercise। Now we explain our another exercise is that give the opposite gender to the following। यहाँ पे आपको बहुत सारे जेंडर्स दिए हुए हैं, उसके आपको ऑपोजिट जेंडर लिखिए। जैसे कि फर्स्ट है मैडम, तो उसका ऑपोजिट जेंडर होगा सर। उसके बाद है पी है, तो उसका ऑपोजिट जेंडर होगा पीकॉक। उसके बाद है मिल्कमैन, तो उसका होगा मिल्क वूमेन। और लैंड लेडी, तो उसका होगा लैंडलॉर्ड। ओके, इसी तरह के बाकी भी और सारे नाउन्स दिए हुए हैं, उसका जो सॉल्यूशन है आई सेंड बाय द पीडीएफ। देन अनदर एक्सरसाइज इज चेंज द जेंडर ऑफ नाउन्स इन ईच सेंटेंस, मेक अदर नेसेसरी चेंज आल्सो। यहाँ पे आपको एक पूरा सेंटेंस दिया है, उसका आपको ऑपोजिट जेंडर में ट्रांसफर करके पूरा सेंटेंस बनाना है। जैसे कि फर्स्ट इज दैट द लायन killed the washerman's daughter। यहाँ पे आपको एक पूरा सेंटेंस दिया है कि द लायन कील्ड द वॉशरमैन्स डॉटर। यहाँ पे जो जो नाउन जेंडर नाउन है उसको आपको ऑपोजिट में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आल्सो फाइंड व्हिच नाउन, लायन, द वॉशरमैन एंड डॉटर। तो लायन का क्या होगा, लायनेस, वॉशरमैन का वॉशर वुमेन एंड डॉटर का होगा सन। तो उस चेंजेस के हिसाब से हम पूरा सेंटेंस लिखेंगे। तो जैसे कि the lioness killed the washerwoman's son। उसी तरह all other exercise and sentences are there and I sent by the PDF। Now we shift to the board। Our another topic is the possessive। We often the possessives with a personal noun to show the possession, relationship or place where one lives or work। यहाँ पे possessive forms मतलब कि वो कोई भी पर्सन जहाँ पे रहता है या उसकी जो भी चीज है उसकी ऑनरशिप, उससे उसका क्या रिलेशन है, ये सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि दैट इज अ मारियाज बेड। मतलब कि यहाँ पे जो बेड है वो पर्टिकुलरली बताया गया है कि वो कौन किसका बेड है, मारियाज का। मनुज फादर इज अ डॉक्टर, तो किसके फादर डॉक्टर है, तो कि मनुज। और जो पॉजिटिव फॉर्म है उसमें जो ये बात, एक बात ये है कि इसमें एपोस्ट्रोफी एस यूज करना है हर थिंग्स या हर नेम्स के पीछे, और ये यही डिस्क्राइब करता है कि इसके साथ इसकी क्या ऑनरशिप, ये क्या रिलेशनशिप है। जैसे कि वी कैन यूज द पॉजिटिव विदाउट द फॉलोइंग नाउन व्हेन द मीनिंग इज अंडरस्टूड। जैसे कि दिस इज नॉट माय कैमरा, इट्स वरुण्स। यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म से हमको अंडरस्टैंड हुआ कि ये जो कैमरा है ये मेरा नहीं है, किसका है, वरुण का है। उसी तरह दिस इज निशा's बाइक एंड दैट वन इज हर ब्रदर, तो कि ये जो बाइक है वो निशा की है और ये जो भाई है वो उसका है। उसी तरह we use the apostrophe s with the singular noun but only apostrophe with the plural noun, a plural noun not ending in a s take apostrophe s in the possessive form। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो प्लूरल फॉर्म में हम जो एपोस्ट्रोफी एस यूज करेंगे तो प्लूरल फॉर्म बनेगी। जैसे कि फादर्स, तो यहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे कि माय फादर्स कोट, मतलब कि ये कोट किसका है, तो मेरे पापा का। माय पेरेंट्स कोट, तो यहाँ पे जो इन दोनों के
उसमें हम पॉजिटिव फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस के जैसा। और अगर कोई प्लूरल नाउन हो उसमें वी कैन यूज द पॉजिटिव फॉर्म। तो एंड एस के बाद जो उसका प्लूरल फॉर्म होगा उसके बाद अकेला या साइन भी डिस्क्राइब कर देंगे, जिससे ये पता चल जाएगा इट्स आल्सो अ पॉजिटिव फॉर्म। We normally use the possessive form for the people and animal, but we use of for things. कई बार यूजुअली हम जो possessive form है वो peoples और animals के लिए यूज करते हैं, पर things के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे एग्जांपल से मैं आपको डिस्क्राइब करके सब एक्सप्लेन करती हूँ। मोहन्स हाउस, तो घर, तो किसका? मोहन का। The dog's collar, the gate of our house, the color of the car. Now we explain the exercise related to the possessive nouns. यहाँ पे है कि rewrite each item correctly. जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है the table's leg, तो ये possessive form है, उसको हमें नॉर्मल nouns में कन्वर्ट करना है। तो the legs of table। उसी तरह यहाँ पे दूसरा है तो the bank's manager, तो the manager of bank। Okay, now our another exercise is, are these sentence okay, correct, incorrect ones? यहाँ पे आपको जो sentences दिए हुए हैं वो right है या wrong वो आपको करना है। अगर जो wrong है तो आपको correct form में लिखना है। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है the house of my parent is not big। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है उसके नीचे जो अंडरलाइन किया वो पार्ट है द हाउस ऑफ माय पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट क्या करेंगे कि द हाउस ऑफ माय पेरेंट्स इज नॉट बिग, तो उसका करेंगे माय पेरेंट्स हाउस इज वेरी बिग। My parents' house is not very big. Okay, then our another exercise is that our another exercise is use the word in bracket to write the answer. यहाँ पे ब्रैकेट में जो दिया गया है उसकी मदद से आपको ये पूरा लिखना है। जैसे कि whose pen is this, ब्रैकेट में दिया है नीना, तो नीना's pen। और ये डिस्क्राइब करता है कि ये जो पेन की ऑनरशिप है किसकी है? नीना की। उसके बाद अनदर सेंटेंस इज दैट whose clinic is this, तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें दिया गया है डॉक्टर कुमार, तो ये किसकी क्लिनिक है? ब्रैकेट में दिया है डॉक्टर कुमार, तो आंसर रहेगा डॉक्टर कुमार क्लिनिक। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्लिनिक के ऑनरशिप किसकी है? डॉक्टर कुमार की। इसी तरह बाकी के जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है आई सेंड बाय द पीडीएफ। नाउ वी